Trying to do this question called longest substring without repeating characters. So here what you have is you have a long string, okay, and you have to find the length of the longest substring where there is no repeating character. So ABC here, if you see, this substring does not have any duplicate number, all are unique, A, B and C. Okay, now you have to find out how, like, let's see how we can do this. Okay, so now I have taken one string, and it's a different string than the string that we already saw. So now if you see here, you have to find out the longest substring. Okay, तो अभी आप, like, what you will do, you can, one thing, brute force thing is you can find out all the substrings, and then you find out whether it is whether it contains any duplicates or not. Basically you can put all the letters into a set and all the letters into a list. If length of both these things are equal, then that means that there is no duplicate. And here we are trying to find out whether find out if a substring is substring has a same, matlab substring in a substring where there are duplicates or not. Okay, so how would you find substrings then? For substrings you have to do a nested list. So basically you will put one pointer here and one pointer will keep on moving. Then like basically one pointer will point to the first like starting of the substring, and one character will point, one pointer will point to last of that substring, and in between that you have your substring, and then you find out whether it is unique or not. So you will keep on moving this substring. Okay, so keep on moving this pointer, and once it is, you have used 0 and traversed till 1 to last, then you will start from 1, and then again you will basically do 1 to n and so on. Okay, so in this way you will find out all the substrings, and it will take you n square. Okay, so can we do better than this? Can we do it in a single parse? So for single parse, what you can do, you are starting from the first character, right? You are starting from the first character, and then you keep on moving it. You found a unique string, okay, then again you move it. Then you found a duplicate. If you found a duplicate, is this substring valid? It is not valid, right? Then you start shrinking this substring from the start. मतलब ये वाला जो substring है, ये valid अगर नहीं है तो इसको extend क्यों करें? समझ रहे हो? So आपने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यहाँ से शुरू किया, फिर आप यहाँ गए. Again this is a valid substring, no duplicates here. Then you move here. Now this is not a valid substring for our case. ये जो A है, इसको हटा दें हम तो वापस से वैलिड बन जाए. अब आप बोलोगे कि हम इस A को क्यों नहीं हटा रहे? अगर आप इस A को हटा दोगे तो फिर ये सबस्ट्रिंग टूट गया ना यहाँ पे. अगर मान लो कि यहाँ पे अभी तो B है, बट मान लो यहाँ पे D होता तो ये BAD एक सबस्ट्रिंग बन जाता, एक यूनिक, एक वैलिड सबस्ट्रिंग बन जाता. ठीक है, तो इस केस के लिए हम इसको हटाएंगे. हम आगे से हटाना शुरू करेंगे कब तक? जब तक हमारे पास ए जो है वो एक यूनिक ही बचे, एक ही काउंट का बचे. ठीक है, हो सकता है इसके पहले भी एलिमेंट्स होंगे, तो हम शुरू से सारे एलिमेंट्स को हटाना शुरू करेंगे. तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? इसके लिए हमको स्टार्ट पॉइंटर भी चाहिए होगा, जो पॉइंट करे कि वो सबस्ट्रिंग कहाँ से शुरू होता है. क्योंकि देखो, जब आप इसको हटा दोगे तो आपका स्टार्ट पॉइंटर यहाँ हो जाना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए हमको लाइक कॉन्क्रीटली हमको एक वेरिएबल असाइन करके रखना पड़ेगा. ठीक है,
अब आप मूव करते जाओ, फिर से देखो, फिर आपका फिर यूनिकनेस ख़त्म हो रहा है, फिर आपने स्टार्ट को मूव किया, फिर आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर देखो फिर से वापस से सेम अकरेंस आ गया, ठीक है। फिर से आपने मूव किया, कब तक? अब सिर्फ इसको मूव करके नहीं होगा, एक बार और मूव करना पड़ेगा। बी, ये बी तो अभी सेम ही है, ठीक है, तो एक बार और यहाँ पे मूव करा आपने, फिर अब देखो सी डी बी आ गया। अब ये यूनिक सबस्ट्रिंग है, ठीक है। फिर अगेन आप यहाँ जाओगे, फिर आपने देखा कि ठीक है ये वाला जो है आपने फिर इसको हटा दिया, फिर डी पे रखा, डी बी सी, फिर आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए, एंड ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप चले जाओगे। इससे आपके सारे सबस्ट्रिंग निकल जाएंगे। अब इसकी गारंटी कैसे कि सारे सबस्ट्रिंग इससे निकल रहे हैं? देखो, सबसे हमारा बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो ये स्ट्रिंग है वो ही एक सबस्ट्रिंग हो जाए। अब लेकिन वो सबस्ट्रिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पूरे को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमको डुप्लीकेट मिल रहा है हम आगे से उसको हटाते जा रहे हैं, ठीक है, कि डुप्लीकेट मिल गया चलो इसको हटा दो। और ये ऐसा नहीं है कि इसको हटा दिया तो वो सारी चीज़ें कंसिडर नहीं हुई। मान लो कि अगर ये पूरा एक, देखो ये जैसे ये जब एक सबस्ट्रिंग बना तो हम इस सबस्ट्रिंग को भी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, कि हम अपने मैक्स लेंथ में इसको भी कंपेयर करके देखेंगे कि क्या इसका लेंथ बड़ा है या फिर जो पहले से था वो बड़ा है, ठीक है। तो हम जब भी एक सबस्ट्रिंग फॉर्म कर रहे हैं हम उसका हम लेंथ ज़रूर ले रहे हैं। अब हमारे पास फालतू सबस्ट्रिंग्स कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे हम अभी हम जब हम सारे सबस्ट्रिंग्स कंसिडर कर रहे थे, तो अभी सारे सबस्ट्रिंग्स आप कंसिडर करोगे तो आप ए कंसिडर करोगे, ए बी ए, ए बी, ठीक है, ए बी सी एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें से देखो कितने सारे फालतू हैं। हमको जब पता चल गया कि ये सबस्ट्रिंग ही वैलिड नहीं है तो उसके बाद इसको लेने से क्या फ़ायदा? इसमें तो सारा ये वाला पोर्शन आ ही रहा है जिसमें यूनिकनेस ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही हम ये सारे चीज़ों को ना ऑमिट कर रहे हैं, जिसमें भी हमारी यूनिकनेस ख़त्म हो रही है हम उस सफिक्स को ले ही नहीं रहे हैं, उसको हम हटा दे रहे हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद हम आगे से कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो आप सिर्फ जनरेट करते रहोगे लेकिन जनरेट करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। ये हम यूज़लेस काम कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। वी आर रिमूविंग दैट सफिक्स विच हैज़ डुप्लीकेट्स एंड वी आर ओनली कीपिंग जहाँ पे यूनिकनेस वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी द कोड। ओके, सो आप अगर यहाँ देखते हो तो सबसे पहले क्या है कि हम लेंथ चेक करेंगे, ठीक है। अगर लेंथ ही नहीं है, अगर यही अगर ज़ीरो है तो मतलब खाली स्ट्रिंग है तो आंसर भी खाली ज़ीरो ही होगा, ठीक है। तो उसमें तो जब स्ट्रिंग ही खाली तो सब स्ट्रिंग कैसे बनेगा, राइट। अब सीन क्या हमारा मैप है, ठीक है। जो भी हम एलिमेंट देखेंगे तो उसको हम रखते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या बात करी थी कि अगर ए बी ए है, अगर मान लो ये सी होता, ठीक है, ए बी सी बी है, ठीक है। तो अगर हम जब यहाँ आएंगे तो हमको वो पूरा सबस्ट्रिंग हटाना पड़ेगा जहाँ पे मतलब हम चाहते हैं कि बी का अकरेंस सिर्फ 1 हो, तो हम बी का जो लास्ट अकरेंस है, ठीक है, वहाँ तक का हमको पूरा सबस्ट्रिंग हटाना पड़ेगा। तो ये लास्ट अकरेंस हमको ये जानने के लिए कि बी प्रेजेंट है, ठीक है, इस वाले सबस्ट्रिंग में बी प्रेजेंट है। हमारा अगर स्टार्ट यहाँ है तो अगर सपोज़ हमारा स्टार्ट यहाँ है, सॉरी वहाँ नहीं, हमारा स्टार्ट यहाँ है, तो यहाँ से लेके हमारा जो करंट पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उस तक में अगर बी प्रेजेंट है तो फिर हमको ये अपना मतलब हटाने वाला काम करना है, ठीक है, सबस्ट्रिंग को छोटा काटने वाला काम करना है हमको। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा। तो हम ट्रावर्स करके जान सकते हैं कि हम पूरे स्टार्ट से वापस से देखें कि, या फिर हम याद रख सकते हैं कि हमने बी को देखा था। अब याद रखने के लिए हमको इसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा और उसको हमको तुरंत देखना भी है। तो इस चीज़ के लिए हैश मैप इज़ द बेस्ट थिंग। O(1) में लुकअप हो जाता है, तो इसलिए हमने मैप बनाया है, ठीक है। हम जो
स्ट्रिंग देख लेंगे उनको हम मैप में रखते जाएंगे। देन वी हैव ग्लोबल वेरिएबल जो कि स्टोर करेगा कि हमने मैक्सिमम सब स्ट्रिंग अभी तक क्या देखी, मतलब मैक्सिमम लेंथ अभी तक क्या देखी है सब स्ट्रिंग की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीन ऑलरेडी देख रखा था तो हमने सीन डाल दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस वाले कैरेक्टर से। ठीक है, ABCD है तो इस वाले कैरेक्टर से ABCB है, सॉरी, इस कैरेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये हम चेक करेंगे कि क्या ये सीन में है। अगर ये सीन में है तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारे काम का मतलब हमारे स्टार्ट पॉइंटर के बाद है, क्योंकि अगर हमारे सबस्ट्रिंग से पहले अगर ये आ रहा है तो हमको क्या मतलब है रहे, इसको तो हमने ऑलरेडी छाट ही रखा है। हमको अगर हम जो सबस्ट्रिंग अभी कंसिडर कर रहे हैं अगर ये इसमें आ गया तो दिक्कत है। ठीक है, तो अभी जो हम सबस्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं उसमें आ जाए, ये कैसे पता चलेगा? अगर ये हमारे स्टार्ट से बड़ा या बराबर हो। ठीक है, तो हमने ये चेक कर लिया। फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्टार्ट को अपने स्टार्ट पॉइंटर को मूव कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ तक ये था हमारा बी का अकरेंस जो हमारी यूनिकनेस ख़राब कर रहा था, तो हम स्टार्ट अब यहाँ से करने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट आ गया जो भी हमने लास्ट अकरेंस देखी है +1। ठीक है, फिर मैक्सिमम लेंथ हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम इस नंबर को भी वापस से मैप में डाल देंगे ताकि आगे के नंबर्स उसको चेक कर सकें। ठीक है, और फिर हम मैक्सिमम लेंथ रिटर्न कर देंगे।